જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પુનરાવર્તન કરવાનું છે. પાઠ 1ની અંદર વર્ણમાલા સ્વર અ આ ઈના જે સ્વરો છે તેના વિશે શબ્દો સમજવાના. એ બુક્સની અંદર સ્વાધ્યાયપોથીમાંથી અંદરથી આપણે વાંચવાના છે, બરાબર છે. પછી પાઠ 2ની અંદર શું છે? વ્યંજન છે. જે ચિત્રો ઉપરથી આપણે જે કક્કો હોય છે તેના ઉપરથી જે શબ્દો આપેલો છે, કે દાખલા તરીકે ખટિયા. ખટિયા એટલે શું થાય? ખાટલો. એવી રીતે આપણે સ્વાધ્યાયપોથીમાંથી જાતે વાંચવાનું છે. પછી પાઠ 3ની અંદર શું આપેલું છે? શરીરના અંગો છે, કે શરીરના અંગો વિશે આપણે સમજવાનું. કે શિર એટલે કે માથું, ઉંગલિયા એટલે આંગળીઓ થાય, કલાઈ એટલે કાંડું થાય છે, પછી કોણી એટલે કોણી થાય, ટખના એટલે ઘૂંટી. આવી રીતે રોજ આપણે સ્વાધ્યાયપોથી લઈને વાંચન કરવાનું છે. પાઠ 4ની અંદર બર્તન છે. બર્તન કા મતલબ क्या होता है? વાસણ. ધાન્ય એટલે અનાજ, આદિ એટલે વગેરે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આપણે અહીંયા જોવાનું છે કે પતીલા. પતીલા એટલે શું થશે? તપેલું. તમે બધાએ જોયેલું છે ને, તમારા ઘરમાં તપેલાઓ તો હોય જ છે. પછી ચકલા. ચકલા એટલે क्या होता है? આડણી, રોટી બનાने का સાધન. और કટોરી. કટોરી એટલે વાડકી. આપણે ખાવા પીવા માટે વાડકીનો ઉપયોગ થતો હોય. પછી આટા. આટા એટલે શું થાય? લોટ થાય. ઓર ગુડ. ગુડ એટલે ગોળ થાય. બરાબર છે. હવે પાઠ 5ની અંદર છે, જે આપણે ખાલી જગ્યાઓ આપેલી હોય છે અને શું આપેલું હોય છે? બીજો પ્રશ્ન હોય છે, કે દાખલા તરીકે ખાલી જગ્યા પૂછાય. હવે આપણે એક્ઝામ આવે જ છે નજીક, બરાબર છે. તો હવે ગોપાલ મેરા અચ્છા તો ક્યાં હે? વો મિત્ર થા. એટલે મિત્ર લખવાનું છે. પછી આવી રીતે બધા પાઠમાંથી અલગ અલગ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, કે ગોપાલ कैसा लड़का है? तो गोपाल कैसा लड़का था? कि गोपाल एक चतुर लड़का है. दूसरे नंबर में क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? और कप्तान कौन था? तो क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? गोपाल था. किसमें गोपाल बहुत कुशल है? तो कैच लेने में, કે દડો પકડવાની અંદર ગોપાલ બહુ ખૂબ કુશળ હતો, ખૂબ ખુશ હોય છે. આગળ પડતો હોનહાર લડકા થા. પાર્ટ 6 में था શાક સબ્જી. શાકભાજીઓના નામ આપેલા છે, તેના વિશે આપણે સમજીએ. કે મટર. મટર એટલે શું થાય? વટાણા. और ફુલેવર. ફુલેવર को क्या बोलते हैं? फूल गोभी. ફ લખવામાં થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે, કે જે લાઇનિંગ સ્ટેન્ડ એટલે સીધી આવી જોઈએ, બરાબર છે. बैंगन. बैंगन का मतलब क्या होता है? रेंगन. और उनके बाद में पार्ट 7 છે, कि जे दीपावली. आगे आ रही है दीपावली. देखिए तो दीपावली એટલે દિવાળી. પ્રકાશ એટલે રોશની, જો અંધકારથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય છે. જે દિવાળી આપણા માટે, આપણા હિન્દુનો धार्मिक त्यौहार गणाय છે. आगे प्रश्न है, आज सब लोग क्यों बहुत खुश है? तो आज दीपावली का त्यौहार है, इसलिए सब कुशल है. दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो દિવાળીના દિવસે બધા કેવા કપડાં પહેરે છે? તો નવા નવા પહેરે છે ને. તમે આપણે બધા નવા જ પહેરીએ છીએ. तो दीपावली के दिन लोग सब नए नए कपड़े पहनते हैं. दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है. ऐसे प्रश्न लिखना है. चित्र देखकर ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें समझकर पढ़कर लिखना है. फल और फूल. ફળ આપેલા છે, ફૂલના નામ આપેલા છે. તો આમ એટલે શું થાય? કેરી. એવી રીતે શબ્દો અલગ અલગ ચિત્ર જોઈને સમજવાના છે. आगे फूल के नाम है. तो फूल गुलाब का मतलब क्या होता है? तो गुलाबी होता है. जैसे कि गुड़हल. गुड़हल का अलग नाम है. तो जासूद को हम क्या कहते हैं? गुड़हल कहते हैं ना. और गेंदा. गेंदा तो क्या बोलते हैं? गलगोटो. ऐसे ही सब चित्र देखकर समझना है. पाठ कितने आए? 9 आए. तो कोयल. कोयल के बारे में, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी, मधुर, सुंदर होती है. लगता है कौवे जैसे, लेकिन वाणी में बहुत फ़र्क होता है. तो आम का पेड़ એટલે આંબાનું ઝાડ. સુરીલી એટલે મધુર. જી ભરગર એટલે ધરાઈને કુંજન કરવું. आगे देखिए, कौवे रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है? तो रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है. कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? तो आम का पेड़ है. कोयल की बोली कैसी होती है? तो कोयल की बोली सुरीली होती है. कोयल के 2 नाम. तो कौन सा नाम था? पाठ पढ़ना है. तो पीक और कोकिला 2 नाम है. और बाद में पाठ 10 में मैं हूँ એટલે હું છું. કે જે ચિત્ર દેખવાના છે, કે પહેલા ચિત્રની અંદર સિંહ है, तो मैं सिंह हूँ, तो हूँ सिंह छू. तो जंगल का राजा बता रहा है. सब देखकर उसे डरते हैं. ऐसे पॉइंट समझना है. आगे शब्द दिए गए हैं, कि जैसे बिल्ली. तो बिल्ली को गुजराती में क्या कहते हैं? बिलाड़ी. लोमड़ी तो क्या कहते हैं? सियार. और
भेड़िया, भेड़िया का मतलब क्या होता है? वरु। ऐसे ही भिन्न प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। आगे तिरंगा, झंडा। तो नीला, नीला का मतलब क्या होता है? वादળી कलरનો હોય तो हम क्या बोले? नीला। शान એટલે गौरव, सम्मान એટલે आदर मान। हम बड़े लोग होते हैं घर में, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, तो हमें उसे सम्मान आदर मान से बोलना चाहिए। केसरी तो केसरी रंग, हरा, हरा तो कयो रंग હોય છે? લીલો रंग। देखिए अभी आगे, तो हमारा राष्ट्रध्वज में कितने रंग है? 3 रंग है, जैसे केसरी, सफ़ेद और हरा। बीच में क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24 आरा होता है। भेड़िया की सुंदरता, कि भेड़िया की सुंदरता केवी होय छे? यानी सुंदरता क्या देखकर वो डर कर चला जाता है, उसके बारे में हमने अगले लेक्चर में समझाया था, जब पाठ समझाया था ना तब। देखिए बच्चों, तो अभी भेड़िया, भेड़िया का मतलब क्या होता है? वरो। और दर्पण को क्या बोलते हैं? आईना। डरावनी એટલે दूसरे को देखकर डरी जाइए तो हम क्या बोलते हैं? डरावनी। भेड़िया अपने को कैसा समझता था? भेड़िया तो अपने को बहुत सुंदर समझता था, होशियार समझता था कि मेरे जैसा कोई है नहीं, ऐसा उसके घमंड था, तो वो बहुत सुंदर समझता था। भेड़िया ने आईने में क्या देखा? तो भेड़िया में आईने में क्या देखा था? अपनी सूरत। अपनी सूरत देखकर वो डर गया था, तो क्या जंगल छोड़कर भाग गया था ना। तो भेड़िया क्यों भाग गया? क्योंकि वो अपनी सूरत से डर गया कि मैं ऐसी लगती हूँ। जब आईने में उसे देखा तब मालूम पड़ा ना, तब तक तो मालूम नहीं था, तब तो वो अपने घमंड में उड़ रही थी। कौन उड़ रहा था? भेड़िया। देखो बच्चों, गौरी, वो गाय वाला पाठ है। गौरी किसका नाम है? तो गाय का नाम है। जो उनका जो बच्चा है, बछड़ा, तो उसे क्या बोलते हैं? लालू कहते हैं। बड़े सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। वो दूध देती है और मीठा लगता है दूध। गाय का नाम क्या है? तो गाय का नाम गौरी है। गाय कैसी है? तो गाय बहुत सीधी और दुधारू है। दुधारू के लिए दूध देने वाले। गाय रोज़ कितना दूध देती है? तो 6-7 लीटर दूध देती है। इधर है ना, ये 6-7 लीटर दूध देती है। और लालू किसका नाम है? तो लालू बछड़ी का नाम है। मैं मक्खी हूँ, हूँ माखी छू। माखी के बारे में समझाया था कि जो मक्खी कहाँ रहती है? तो गंदगी में रहती है। गंदगी से हमारे घर तक आती है, तो हमें सारा मोहल्ला कैसा बिगाड़ देती है, गंदगी फैला देती है, और कोलेरा जैसी बीमारियों को फैला देने वाली मक्खी होती है। मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो मक्खी गंदी चीज़ें में पाई जाती है। मक्खी किससे दूर भागती है? तो जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ मक्खी होती नहीं है, तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो तो गंदगी में रहती है। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? तो रोगों के जंतु गंदगी में रहते हैं। किससे बचने में हमारी भलाई है? तो बीमारी से बचने में हमारी भलाई है। आज तक तो कैसी बीमारी आ गई है, तो हम सब लोग घर में ही पूरे रहे थे। तो बच्चों, सोनू को सीख मिली, जो अपने बारे में समझाया है कि छिलका એટલે છાલ, ટોકરી એટલે ટોપલી, શીખ એટલે શિખામણ। શિખામણ આપવી ગમે છે પણ લેવી ગમે છે? ના, નથી ગમતી, કેમ કે કોકને આપવી સારી લાગે, પણ હંમેશા શિખામણ હંમેશા આપણાથી શરૂઆત કરવી જોઈએ। પહેલાં એનો અમલ આપણે જાતે જ કરવાનો હોય છે। देखिए उनके बारे में, सोनू केला खा रहा था और छिलका कहाँ फेंकता था? आम तब इधर उधर फेंक देता था। वो एक दिन गिर गया, तब उसे मालूम पड़ा कि जो जिसे उनके माँ ने समझाया कि केला खाकर जो छिलका था वो टोकरी में ही डाला करो। वो गिर गया, तब मालूम पड़ा। सोनू की क्या आदत थी? तो वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। माँ सोनू से क्या कहती थी? उनकी माँ हमेशा समझाती थी ना कि बेटा केला खाकर वो जो छिलका है वो टोकरी में ही डालो, कहीं ना कहीं तुम गिर जाओगे। ऐसे उनकी माँ हमेशा उनको शिखामण देती रहती है। जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? तो वह सोनू ने फेंका था। सोनू ने क्या कसम खाई? जब गिर गया तब मालूम पड़ा न कि जब छिलका कहाँ डालना चाहिए? टोकरी में ही डालना चाहिए। जब गिरा तब उसने कसम खाई कि सोनू ने छिलका इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। आगे डाकिया है, टपाली है, जो हमारे घर पे जो पत्रिकाएँ, जो मैगज़ीन, कुरियर जो आजकल होता है वही देने के लिए आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डाकिया का मतलब टपाली। थेला એટલે થેલો, કંદા એટલે ખભો, डाक એટલે टपाल જે આપવા માટે આવે છે। आगे डाकिए का नाम क्या था? तो रामदयाल
था। डाकिया कहाँ काम करता है? तो डाकिया डाकघर में काम करता है। डाकिये के थैले में क्या क्या है? तो डाकिये के थैले में क्या था कि डाकिये के थैले में पत्र, पत्रिकाएं और पार्सल था जो अपने घर तक पहुंचाता है। डाकिया क्या काम करता है? तो डाकिया डाकघर में जाता है और अपने टपाल जो होती है वो घर घर जाकर डाक बांटता એટલે વહેંચે છે। पाठ 70 में आवे टोपी और जूता। एक दूसरे को घमंड में कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे बिना नहीं चलता, और जूता कहता है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे बिना नहीं चलता, लेकिन सब उसके बिना भी चलता है, चलना पड़ता है। बातें बनाना, मोटी मोटी बातों करवी। शायद એટલે भाग्य, कीचड़ એટલે कादव। कादव का दूसरा शब्द भी होता है दलदल। भाव बढ़ना એટલે महत्व वधी जવું। कोई सारू काम करिए એટલે एकबीजाना वखाण करे तो क्या बोलते हैं? महत्व वधी गયું, भाव बढ़ता है। आजकल तो उनका भाव बहुत बढ़ता है, आजकल तो एना सारा वखाण थाय छे। एवी रीते कहे छे कि टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? क्योंकि वो आदमी जो मनुष्य के सिर पर रहती है धूप और धूल से बचाती है और इसलिए उनकी इज्जत बढ़ती है। टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? टोपी जूते को छोटा क्यों बताती है? क्योंकि तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है, मैं बड़ी हूँ। इस बात से वो टोपी जूते से छोटा बताती है, क्योंकि वो सिर ऊपर रहती है और वो पाँव में रहता है। इसलिए जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? तो जूता पहने बिना हम चलते हैं तो कक्कड़, कांच, कीचड़ आदि लग जाता है ना पाँव में, तो ऐसे ही जूता पाँव के कक्कड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है। टोपी किससे सिर की रक्षा करती है? तो हर इंसान की रक्षा करती है कि जो टोपी पहनता है वो। टोपी आदमी की सिर की रक्षा करता है। अभी पहचानिए कि जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो यातायात होते हैं, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों लेकर काम करता है। उससे पहले चित्र में धोबी है, माली है, कुम्हार है जो मटके बनाता है, मोची है जूता बनाता है, वो बाल काटता है, वो नाई हजाम कहते हैं, दर्जी कपड़े सीता है, लोहार लोहे की चीज़ें बनाता है, सुनार सोने के गहने बनाता है, हलवाई मिठाई बनाता है, पंसारी क्या बेचता है? वो करियाणानी दुकान में તમે જુઓ છો કે भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज बेचते हैं। और जो राजगीर એટલે कड़ियों जो बड़े बड़े मकान बनाते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? राजगीर। अभी किसान जो खेती पकाता, अनाज पैदा करता है। ठीक है। अभी ओके मेरी साइकिल के बारे में समझिए कि सोनू नाम का एक लड़का है, तो उनके जन्मदिन पर उनके पापा ने उन्हें साइकिल अपने वर्षगांठ पर उसको उपहार में दी थी। उपहार એટલે भेंट, वर्षगांठ એટલે जन्म दिवस। वो साइकिल लेकर स्कूल पे जाता है और स्कूल से जाता है, साइकिल घुमाता है और साइकिल से बातें करता है कि वो साइकिल हमारे साथ चलती है तो हवा से बातें करता है। और साइकिल का नाम क्या रखा था? पवन परी। रोमिल को साइकिल किसने दी थी? रोमिल को साइकिल उनके पिताजी ने दी थी कि वर्षगांठ ऊपर उनके पापा ने गिफ्ट की थी। रोमिल साइकिल पर बैठ कर कहाँ जाता? तो वो स्कूल जाता था। रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा था? तो पवन परी। साइकिल कब हवा से बातें करती है? तो जब साइकिल चलती है तब हवा से बातें करती है। पानी बिना चलता है? नहीं चलता, लेकिन पानी की ज़रूरत जितनी होती है इतना ही उपयोग करना चाहिए। पानी का वेड़फना वो पाप है, बर्बाद करना नहीं चाहिए। खाना पकाना, नहाना धोना सब के लिए पानी की ज़रूरत बहुत पड़ती है, इसलिए पानी समझकर उपयोग करना चाहिए। बच्चों અહીંયા આપણે अब की सही जोड़ मिलानी है। बड़ा એટલે मोटू, इसमें देखकर ही लिखना है। नहाना એટલે नहाવું, बर्तन એટલે वासन, आंगन એટલે आंगनों घर का चौक, पौधा એટલે छोटे बड़े जो छोड़ होते हैं उसे। अभी चित्र है कुआं, नदी, सागर, झरना, बरसात, तालाब सबका चित्र है। देखकर इसमें से समझना है और लिखना है। बच्चों आ विडियो ध्यानथी तमारे जोवानो छे कि जे प्रश्नों पूछवामां आवे छे एना जवाबो तमारे स्वाध्याय पोथीमांथी जोई अने लखवाना छे। जय स्वामीनारायण।